AVR in the load flow study, automatic voltage regulator. So far we have seen the load flow study normally, and there were few methods: Gauss-Seidel, Newton reaction, fast decoupled, DC load flow, approximate load flow study. These were the methods. Here, either the buses were PQ bus or PV bus, and the one is the slack bus. First bus was the slack bus. Some of them were PV buses, and some of them was the PQ buses. And before going to back to load flow study, we must understand what is the role of AVR. What is the AVR? As we know, the role of AVR, its name is automatic voltage regulator. It means it regulates the voltage. AVR maintains the voltage of the bus constant. Means wherever AVR is connected, if the AVR connected at bus number 2, then it will try to maintain of bus number 2 as a constant voltage. So role of AVR is to maintain the constant voltage of the bus. Now, what are the generator buses? Generator buses means the PV buses, where we know P and V, active power and the voltage. If the voltage and active power are known, we call them as a PV buses, and normally all the generator buses are considered or called as a PV buses. And where on the PV buses you have seen P is fixed because we know how much power is being delivered or how much power is being generated by the generator, and V is constant because at PV bus by over excitation and under excitation, because at the generator there is excitation, so by over excitation and under excitation we can control the voltage. That's why it is called the PV bus, and we can decide the voltage at particular bus will be this. Means if we have decided that voltage at generator number 1 or generator number 5, it is the say V5 is equal to 1.05 voltage, so it will maintain its voltage as 1.05. How it will maintain? By changing the constant, by changing the reactive power, or by over excitation and under excitation of the generator. So by over excitation, suppose why there is a need of over excitation and under excitation? If there is a demand of reactive power much more on the load side, if on the load side reactive power demand is more, it means we have to supply more reactive power. Otherwise, what will happen? If demand is more and we are supplying the less reactive power, then voltage will go down. So to maintain a constant voltage, it will supply the reactive power. So in this way, it will maintain the constant voltage. If reactive power demand is less or it is leading, then it will supply the under excitation. So when it will be under excitation, means there will be less excitation than the normal excitation, it will supply the leading. So in this way, again to maintain a constant voltage. If it is not able to supply the lagging or reactive power, variable lagging or reactive power, then the voltage cannot be maintained as a constant voltage of that bus. Okay, is this clear up to this point? ये point clear हो गया जो मैंने बोला? Yes, sir. Now the same role is for the AVR. AVR का भी वही रोल है. AVR is like a generator. AVR भी एक तरह से generator ही हुआ, but without the active power. Where active power is 0. Suppose AVR is connected at bus number 5. It means active power is 0 and reactive power is varied. Reactive power is varied to maintain the bus voltage as a constant. So the role of AVR is also the same as of the generator bus. Now question is, either it is a AVR or it is a generator bus. Whether it is able to constant voltage, it is able to maintain the constant voltage always. Means if the demand is very, very high, means suppose demand is 100 megawatt, and this reflection of the demand of reactive power is 100 MVAR, and reflection of this 100 MVAR at say bus number 2, which is the generator bus, or it may be a AVR bus, then this 100 out of 100 MVAR, say 20 MVAR has to come from the bus number 2, which is either generator bus or it is a AVR bus. But if it is able to supply I said out of 100, say it is a 20 MVAR. But if this generator or this AVR is able to supply the 20 MVAR, then it will maintain the voltage constant. Otherwise, it will not able to maintain the voltage constant. Then what will happen? If it is not maintain voltage as a constant, then suppose demand is 20 MVAR at that particular bus, at say particular bus number 2, where it can be either generator bus or it can be AVR bus, then and its capacity is not to supply the 20 MVAR, then
it will how much reactive power it will supply? It will supply that amount of reactive power which is its maximum capacity. Suppose आपका जनरेटर की maximum capacity 20 MVAR 15 MVAR है, तो ये 15 MVAR सप्लाई करेगा. Or otherwise, if the negative side means it's the maximum capacity. If demand is minimum side, say it is saying load is such that it wants only 2 MVAR, but 2 MVAR or 2 leading MVAR or simply 2 MVAR, and its minimum capacity is 5 MVAR. It has to be supply, means there is a limitation, maximum and minimum. So generator has the minimum limit that it cannot supply less than 5 MVAR, but the load flow says that it should supply only 2 MVAR. So it cannot supply 2 MVAR, then it will supply minimum of 5 MVAR. So once any generator or any reactive power or any AVR, when it is supplying the power at maximum limit or minimum limit, then it is no more as a PV bus. तो ये PV bus नहीं हुआ, then it becomes the, क्योंकि अब उस समय क्या हो रहा है, ये maximum it is giving fixed Q. It is PV means it will maintain the constant voltage. It will maintain the constant voltage only when it will supply that amount of reactive power which is required. But since it is working on the maximum side or minimum side, तो ये उतना voltage उतना reactive power supply नहीं कर पाएगा. Because of that, it will work either of maximum MVAR its capacity or minimum side depending upon the nature of load. तो ये fix at that time it is supplying the fixed Q, fixed reactive power. When it is supplying the fixed reactive power and it is also supplying the P which is already known, so it cannot be PV because V is not constant now. क्योंकि ये voltage उतना, because it is not supplying the reactive power as demanded, so voltage cannot be maintained as a constant. Voltage will change whereas Q will be fixed. So this bus will be the PQ bus. तो अभी तक हमने क्या किया था न्यूटन रैप्सन मेथड में, देखिए अभी तक क्या करते थे. If you see in the Newton-Raphson method, what we used to do, this is, देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया था न्यूटन रैप्सन मेथड में, these are the all P means PV bus or PQ bus. Sorry, P is known to all the buses here. P is known to all the buses, but these are the PQ buses. Q is known only from M+1 to this. तो ये PQ buses है. तो ये PV buses जो था, out of this, suppose bus number 3 earlier, which was the PV bus, because of the limitation of the reactive power, either maximum side or minimum side, it become now PQ bus. तो ये अगर PQ bus हो गई तो ये क्या होगा, इधर आ जाएगी. इसका मतलब ये P3 की जगह Q3 भी आएगा. Q3 Q0 will be additional term here. Q3 Q0 extra additional term आ गया. ये तो रहेगा ही. P is known to all the buses, लेकिन these are the buses where only PQ is known, P and Q is known. तो अब this bus is not PV bus, this become the PQ bus. तो ये Q3 minus Q30 additional term will come here, and accordingly this is modified. Okay, तो this is there. Now ये तो हमने अभी simply Newton Raphson method we told. At every iteration we see, जैसे every iteration we see that this is modified. Jacobian matrix is modified if it is seen, first of all it is seen whether there is a violation of the voltage or not, whether there is violation of reactive power or not. If it is a violation, then it becomes PQ bus and this size will change, and this additional Q3 minus Q30 will come. At every iteration it is checked. This is the case. Now the practical, now come the actual problem. The problem is, what is the problem in solving such equation? Here you see, say this is a voltage, and we assume that at bus number 3 voltage is 1.01, क्योंकि ये PV बस था. Either the AVR is connected or generator bus is there. तो
तो ये पीवी बस जनरेटर बस है या एबीआर कनेक्टेड है, तो ये हमारा सपोज थर्ड नंबर बस इज द एबीआर बस, तो जिसपे हमारा हमने एज्यूम किया दिस इज एबीआर इज कनेक्टेड सच दैट इट विल सप्लाई 1.01 वोल्टेज, कि हमारा 1.01 वोल्टेज मेंटेन करेगा। नाउ सब्जेक्टेड टू द इट्स लिमिटेशन, क्योंकि एबीआर की अपनी लिमिटेशन है, हाउ मच रिएक्टिव पावर इट कैन सप्लाई, हाउ मच रिएक्टिव पावर इट कैन एब्जॉर्ब। एबीआर होता क्या है, it is a basically inductor and variable inductor and capacitor in parallel to each other and connected in shunt with the bus. Okay, is it clear or not? ABR क्या होता है, ABR का जो कंस्ट्रक्शन है, ABR का जो कंस्ट्रक्शन है वो inductor and capacitor connected in parallel to each other and then it is connected in shunt with the bus। वही बस के साथ शंट में कनेक्ट कर देते हैं इसको। मतलब जैसे सपोज करिए बस, बताने की जरूरत है या समझ में आ गई मेरी बात? समझ गए सर। हाँ, जैसे बस नंबर 3 है उस पे एबीआर कनेक्टेड है, जैसे जनरेटर कनेक्ट होता है उसी तरह एबीआर कनेक्ट हो गया। एबीआर का मतलब उस पे पैरेलल में उसमें शंट में एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक वेरिएबल इंडक्टर लगा दिया जो उतना रिएक्टिव पावर देगा जितना की डिमांड है, सो एज टू मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज। ओके, नाउ अब देखिए इसमें आइडियली क्या है कि जब ये 1.01 वोल्टेज है, ओके, विच वी वांट, हमें बस नंबर 3 का वोल्टेज इतना चाहिए, एंड below this whatever epsilon times less, if the voltage is epsilon times less, then depending upon the reactive power demand, means जितना रिएक्टिव पावर उस बस पे चाहिए, बस नंबर 3 पे जितनी रिएक्टिव पावर चाहिए, सपोज दिस मच रिएक्टिव पावर इज रिक्वायर्ड, suppose here 0.1 reactive power is required, so it will give 0.1 reactive power. If the 0.2 reactive power is required, it will give 0.2 reactive power and 0.3 reactive power. But so it means at 0.3 reactive power it will give this voltage, at 0.2 reactive power it will give this voltage, at 0.1 it will give this voltage, means it will maintain this voltage. Or if this is the reactive power, this is a inductive type, this is capacitive type. Reactive power minus means capacitive type reactive power, leading reactive power. If the reactive power demand is leading type, so if it is a leading power this, then also it will maintain this voltage. Otherwise, and means it will give this Q minimum, उस समय ये Q देगा Q. So it means reactive power entered into the bus, reactive power injected into the bus can be from here to here, here to here, and from here to here, minimum side. This reactive power can be either this, or minimum of this. So reactive power will be from this range to this range at this voltage 1.01. लेकिन 1.01 से अगर रिएक्टिव पावर डिमांड अगर ज्यादा है, रिएक्टिव पावर डिमांड इसकी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा है, तो वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा, मींस इट विल नॉट मेंटेन वोल्टेज एंड वोल्टेज विल कम डाउन। तो वोल्टेज ये इसके बाद मेंटेन नहीं रख पाएगा और सडनली द वोल्टेज विल कम डाउन, ये मैक्सिमम लिमिट है। ऐसे ही सडनली वोल्टेज विल हियर इट विल नॉट एबल टू मेंटेन, कि वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा इधर इसमें अगर। सो बट प्रैक्टिकली क्या होगा, दिस इज ए थ्योरेटिकल ग्राफ। प्रैक्टिकली क्या होता है, दिस ग्राफ इज नॉट लाइक दिस, नॉट none of the ABR is like this that it has sharp, कि भाई 1.01 के बाद सडनली ये इस तरह शार्प हो जाए और ये इस तरह शार्प हो जाए मिनिमम, उससे उसके विद इन दिस लिमिट इस पे एग्जैक्टली वोल्टेज मेंटेन रखे और ये मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्रॉस कर जाए। प्रैक्टिकल केस इज लाइक दिस। प्रैक्टिकल मींस सपोज दिस इज 1.01, ये वाला टर्म है जिसको डिफरेंट वे में देखें 1.01, उसके बाद इट इज ए प्रैक्टिकल केस दैट रिएक्टिव पावर डिमांड, जैसे वोल्टेज थोड़ा सा हमारा रिएक्टिव पावर डिमांड के अकॉर्डिंगली ये वोल्टेज it will supply the reactive power according to the voltage. Suppose in the middle this is 0 0, it is 0 and this 0 for example, or it can be 1 per unit, 1.01 per unit, और ये हमारा कुछ पर्टिकुलर रिएक्टिव पावर हो गया यहाँ पे कि भाई if this x goes below this, then this will be the reactive power. If x goes this, then this will be reactive power. Negative side पे, leading side पे x की वैल्यू चेंज होगी, so this is a practical case. Now, सर हाँ, हरप्रीत वांट टू ज्वाइन। कौन? सर हरप्रीत। अच्छा, तो जस्ट अ मिनट।
सो दिस इज द प्रैक्टिकल मीन्स जो रिएक्टिव पावर होगा वो इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का ग्राफ नहीं होगा। तो अभी तक हम क्या आइडियल सिचुएशन मान लेते थे कि ये इसके बाद जैसे ही रिएक्टिव पावर का मैक्सिमम लिमिट आएगा तो इधर चला जाएगा इस, और इट विल मेंटेन दिस वोल्टेज। तो वोल्टेज हमारा आइडियली 1.01 पीवी बस। पीवी बस का मतलब क्या है, पी इज फिक्स्ड एंड वी इज फिक्स्ड, और वी इतना ही मानते थे। बट इन फैक्ट at reactive power at a bus number at bus where AVR is connected, this voltage will not be exactly this, it can be within some range। जैसे ये 1.01 है, हम ये कह सकते हैं 1.008 1.012 इस रेंज में वोल्टेज मीन्स वोल्टेज कैन बी फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज। मतलब क्या हुआ, वोल्टेज इज वेरिंग क्योंकि हमारा अल्टीमेट पर्पज क्या है वोल्टेज का, इट हैज टू बी वोल्टेज विद इन ए स्पेसिफिक लिमिट। वोल्टेज का हमारा 1-2% आगे पीछे अगर वोल्टेज होता है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इन दैट केस इट इज नॉट ए पीवी बस नाउ। अब वो पीवी बस नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गया, ये रिएक्टिव पावर, क्योंकि अब ये तो पता लग गया क्यू की वैल्यू पता लग गई, वोल्टेज हैज चेंज्ड बिकॉज हियर वोल्टेज हैज चेंज एंड रिएक्टिव पावर हैज बीन फिक्स्ड। रिएक्टिव पावर पता लग गई कितनी होगी, मींस even when the AVR is connected, when the AVR is connected, it is not actually PV bus, it will up to certain range it will be PV bus, and suddenly it will be the like a PQ bus। मिनिमम और मैक्सिमम Q का जो लिमिट है इस रेंज में रखेगा, इस रेंज में रखेगा, और वोल्टेज कैन बी स्लाइटली इन दिस रेंज। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तो Q इंजेक्शन ये तो थ्योरेटिकल था। Now question is how to, if it is a now PQ bus, if it is not a PV bus, it is a PQ bus where Q is, अब Q भी फिक्स नहीं है, Q ऐसा नहीं है Q ये मैक्सिमम और मिनिमम है, इट इज नॉट मैक्सिमम एंड मिनिमम, Q विल बी एनीवेयर इस रेंज में। जैसे अगर ये ग्राफ ऐसा कर दिया तो थोड़ा ये ऐसे कर दिया, सो Q कैन बी एनीथिंग, Q यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड Q की वैल्यू इसमें चेंज होगी। सो इट इज ए PQ बस बट नॉट फिक्स Q। PQ बस तो बन गया, इफ AVR इज कनेक्टेड इट बिकम्स लाइक ए PQ बस बट Q इज नॉट एग्जैक्टली नोन। Q हमारी फिक्स नहीं है, बट Q फिक्स नहीं है तो कितनी है Q हैज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस ग्राफ। ये जो हमारी इक्वेशन ग्राफ बन गया, ये इक्वेशन बन गई, इससे Q निकालना पड़ेगा। तो इससे निकालने के लिए इस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस ग्राफ इफ यू रिमेंबर इट इज लाइक ए 10, जो 10 हाइपरबोलिक फंक्शन, इफ यू राइट sin हाइपरबोलिक थीटा, 10 हाइपरबोलिक थीटा, cos हाइपरबोलिक थीटा, तो 10 हाइपरबोलिक x को अगर देखेंगे इट दिस इज लाइक दिस, 10 थीटा और 10 हाइपरबोलिक थीटा का अगर ग्राफ देखेंगे इट इज लाइक दिस। तो 10 हाइपरबोलिक वर्सेस थीटा, और दिस इज 10 हाइपरबोलिक x वर्सेस x, तो दिस इज ए ग्राफ लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q is known but it is not constant fixed, this Q is to be calculated from this graph। तो इस ग्राफ से कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए एक इक्वेशन लिखा है। देखिए इसके लिए इन्होंने ये एग्जांपल लिया, that Q is varying like this, Q is otherwise in PQ bus Q should be fixed, but it is a PQ bus where Q is not fixed, Q is डेफिनेट वैल्यू विच इज टू बी कैलकुलेटेड नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू। तो ये इससे हम क्यों कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से। इसको एक एग्जांपल लिया, फ्रॉम दैट एग्जांपल दैट से 1.01 इज द नॉर्मल वैल्यू, और ये मैक्सिमम लिमिट इज गिवन, मिनिमम लिमिट इज गिवन, मैक्सिमम लिमिट इज से इट इज रिएक्टिव पावर 0.45 पर यूनिट, एंड दिस इज 0.15 माइनस में लीडिंग मिनिमम साइड। सो if you plot this means ये जो ग्राफ है इस इक्वेशंस को अगर आप लिखेंगे, where maximum is known, minimum is known, this is 10 hyperbolic, तो ये इसका इक्वेशन लिखेंगे तो दिस इक्वेशन विल बी लाइक दिस। Q इंजेक्टेड पावर कितना आएगा 0.3, 10 हाइपरबोलिक 500 मींस जितना हम शार्प डिपेंडिंग अपॉन, देखिए यहाँ पे दिखाया है, ये बीटा की वैल्यू 120 200, जितना बीटा की वैल्यू हम ज्यादा लेंगे तो ये हमारा फंक्शन जो हमारा डिजायर्ड फंक्शन है वैसा बनता जाता है। इसलिए हमने ये बीटा की वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज बीटा इज 10 हाइपरबोलिक 500 माइनस बीटा, दिस वैल्यू v
वी दिस नाउ व्हाट इज दिस, इसको अगर देखिए 10 हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए देखिए ये निकाला P स्पेसिफिक मीन नॉर्मल 1.01 जो लिया है, नॉर्मल वोल्टेज, बीटा की वैल्यू 500 लिया, Q स्केल इज Q मैक्स माइनस Q मिनिमम, Q मैक्स इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 0.45 था, ये -0.1 था, -0.15 था, 0.45 माइनस माइनस प्लस 0.15, तो ये 0.6 डिवाइड बाई 2 0.3 हो गया, ये 0.3। ऐसे Q मैक्सिमम मिनिमम ये 0.45, ये -0.13, 0.3 डिवाइड बाई 2 0.15 हो गया मीन। सो इट इज क्यू मैक्स, इसकी जैसे y इक्वल टू mx प्लस c का इक्वेशन लिखना हो तो हम दो पॉइंट ले लेते हैं, x माइनस कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 प्लस x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, ऐसे तो लिखते हैं। अगर इफ द टू पॉइंट्स आर गिवन देन वी कैन राइट द लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही 10 हाइपरबोलिक में इफ दीज पॉइंट्स टू मैक्सिमम एंड मिनिमम इज नोन देन वी कैन राइट 10 हाइपरबोलिक इक्वेशन लाइक दिस। ये तो इसकी इक्वेशन को हमने यहाँ इस वे में ऐसे लिख लिया एंड दैट इज द जनरल इक्वेशन। तो अब Q की वैल्यू पता लग गया मुझे, जब Q का वैल्यू पता लग गया सो इट मींस नाउ यू कम अगेन इन द न्यूटन रैप्सन मेथड। तो जितनी बसेस पे हमारा पीवी बसेस है, जैसे हमारी ये पीवी बसेस थी, पीवी बस, ये ऑल पी बसेस, ये पीवी भी है पीक्यू भी है, ऑल पी बसेस ये हमारे पीक्यू बसेस हैं। तो जो पीवी बसेस थे, अब नाउ वी हैव कंसीडर, अब हमने क्या माना है, जितनी भी पीवी बसेस है जिस पे जनरेटर, जो पीक्यू है वो तो है ही, इसके अलावा जो जनरेटर बसेस है वो दोज बिकम द लोड बसेस, मींस वो भी पीक्यू बस बन गया। तो अब सारी की सारी बसेस पीक्यू, पी तो सारी है ही, सारी बसेस ये भी बन गई, PQ भी बन गई। तो अब Q की वैल्यू m+1 से n नहीं हुआ, Q की वैल्यू कहां से लिखेंगे, Q2 टू Qn, क्योंकि जनरेटर बस भी अब PQ बस बन गई, तो यहाँ Q2 से लेके Qn। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? ये हमारी बसेस, एक तो ये बसेस हो गई, इसके अलावा जो Q बसेस था ये इनकी वैल्यू फिक्स है, Qm प्लस Qn आर फिक्स्ड, लेकिन जो Q2 से लेके Qm तक की बसेस, सॉरी हाँ, Q2 से लेके Qm था, जो वैल्यू हमारे केस में जो जनरेटर बस था वो वैल्यू भी यहां लिखा जाएगा, Q2 से लेके Qm। बट नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अब डिफरेंस क्या, देखिए Qm से ये तो PQ बसेस हैं ही, मतलब Qm+1 टू Qn आर नॉन, लेकिन Q2 से लेके Q2 से लेके Qm तक की जो बसेस थी वो ABR बस थी या जनरेटर बस थी, और वो जनरेटर बस या ABR बस वो भी अब PQ की तरह एक्ट कर रही हैं। फर्क क्या है उसमें, ये Q की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो हमें इस इक्वेशन से कैलकुलेट करना पड़ता है, जो अभी आपको दिखाया इस इक्वेशन से, ये रहा, इस इक्वेशन से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक इटरेशन पे, अब ये एक तो इसका साइज चेंज हो गया, देखो इसका साइज कितना था पहले, ये n-1 था और ये भी n-1 हो गया, n-1 n-1 n-1, और पहले ये क्या था n-m, तो अब ये n-1 हो गया, तो इसका साइज चेंज हो गया, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ, अब जब ये जैकोबियन हम कैलकुलेट करेंगे, व्हेन वी कैलकुलेट द जैकोबियन, न्यूटन रैप्सन मेथड में नॉर्मल जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। अब इसका एक तो साइज चेंज हो गया और दूसरा बिकॉज ऑफ ABR और एक्चुअल प्रैक्टिकल केस, क्योंकि जनरेटर हमारे दे आर नॉट जस्ट लाइक ए theoretically that it will supply either maximum or minimum, but it can supply in between the two, means हमारा जो Q होगा, मतलब it will maintain not be able to maintain the constant voltage, but voltage will be in some variable range। तो यहाँ पे हमारे Q की वैल्यू और निकालेंगे, तो इसकी साइज चेंज एवरी टाइम दिस साइज इज चेंज, और डेल्टा टू डेल्टा एम जो नॉर्मल प्रोसीजर था ये निकालते जाएंगे, इसका इनवर्स करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट इटरेशन सेकंड इटरेशन चलता जाएगा। तो एवरी टाइम व्हेन वी डू द इटरेशन, जो ये Q2 से लेके Qm जो ABR बसेस थी उसको उसका Q, देखिए ये फिक्स वैल्यू है, एंड ये क्या है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। कैलकुलेटेड कहां से निकलती है,
बाई एस्टिमेटेड वैल्यू। जो ये एस्टिमेटेड जो हमने एज्यूम किए हैं, इसको जब लोड फ्लो की जो इक्वेशंस हैं, ऊपर जो आपने जो क्यू की इक्वेशन थी उसके अंदर रखते हैं, पी और क्यू की इक्वेशन है लोड पावर फ्लो इक्वेशन, तो ये निकलती है वैल्यू। मींस बाय पुटिंग द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दीज इन द पावर फ्लो इक्वेशन बी ऑब्टेन दीज वैल्यू एंड दीज वैल्यू। तो ये तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये नॉन वैल्यू है, लेकिन जो Q2 से लेके Qn की हैं वो नॉन नहीं है, बट दे आर कैलकुलेटेड एवरी टाइम विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन, जो अभी आपको हमने यहां बताई है Q की इक्वेशन। इज दिस क्लियर दिस पॉइंट? ये सॉरी, ये हमारा इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इट टेक्स केयर ऑफ एबीआर। यहां तक देखिए, ये एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज, ये HHII सेम एज इट इज निकालेंगे, ओनली आपका डिफरेंस यहां पड़ जाएगा LII। जो LII अगर आप यहां देखेंगे, LII क्या था इसमें देखेंगे, LI सो LII वाज दिस। ये अभी तक तो ये M+1 से ये था, अब ये इसका साइज चेंज हो गया बिकॉज यहाँ जो Q2 से लेके QM, जैसे ये निकला ना M+1 टू रिएक्टिव, Q2 से लेके QM जो निकलेगा उसमें जो Q का वैल्यू होगा दैट विल बी फ्रॉम दैट इक्वेशन। यहाँ ये देखिए पावर फ्लो इक्वेशन से आ रहा है Q, इस Q की वैल्यू कहां से आ रही है? पावर फ्लो इक्वेशन से इसका डेरिवेटिव आ रहा है, लेकिन उसका डेरिवेटिव पावर फ्लो की इक्वेशन से नहीं आएगा, बल्कि इस इक्वेशन से आएगा डेरिवेटिव। वो हमारा डेरिवेटिव इस इक्वेशन से आएगा, इस इक्वेशन से आएगा। तो इसलिए LII विल बी स्लाइटली फर्दर मॉडिफाइड, तो हमारा LI की वैल्यू ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा, दिस विल बी मॉडिफाइड वैल्यू। सो इन दिस वे विद दिस टू मॉडिफिकेशंस, मींस एक तो हमारा जो जैकोबियन है उसका साइज चेंज हो रहा है, उसमें Q2 टू QM ऐड हो रहा है, और ये LI की वैल्यू चेंज हो रहा है। विद दिस मॉडिफिकेशन वी कैन इनकॉर्पोरेट द रोल ऑफ AVR इन द लोड फ्लो स्टडी, बिकॉज पावर सिस्टम हमारा सिंपल नहीं है। इनफैक्ट द AVRs आर आल्सो कनेक्टेड, एक तो जनरेटर्स तो है ही, उसके अलावा इंडिपेंडेंट AVRs आर। तो इन दिस वे वी टेक केयर द AVR इन द लोड फ्लो स्टडी। इसमें किसी को कुछ पूछना है देन ही और शी कैन आस्क, इसमें आप पूछ सकते हैं। तो कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। बीटा की वैल्यू क्या लेनी है? सेकंड